एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लैब टेक्नीशियंस वीडियो। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हीमेटोलॉजी। हीमेट मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो देखेंगे स्टडी ऑफ ब्लड। सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ के दिखाऊंगी, उसके बाद हम और भी देखेंगे जो कि हीमेटोलॉजी में सबसे ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको सब मैं पिपेट्स वगैरह सबके बारे में बताऊँगी एंड द सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊंगी, आप इसमें से नोट्स भी ले सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हेमाटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ क्लिनिकल हेमाटोलॉजी लैबोरेटरी आर टू डिटेक्ट ब्लड डिसऑर्डर्स एंड टू असिस्ट इन द एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसऑर्डर so that appropriate treatment can be given and to monitor the progress of the patient treatment. Blood is a fluid connective tissue that circulates through the vascular system. It makes up about 7% of body weight and is often an extremely important indicator of health or disease. In a clinical setup, hematology laboratory is concerned with the abnormalities of the constituents of blood, namely the plasma and blood cell. The laboratory tests performed include enumeration of different types of cells, relative distribution of various categories, and their chemical, functional, and structural abnormalities. Hematological tests are also required as part of patient's admission report because many diseases show signs and symptoms of the hematological nature. These tests are commonly referred to as complete blood count, that is CBC, and include estimation of hemoglobin with indices of blood, enumeration of red and white blood cells and platelets, differential count abnormalities of red cells and platelets. Since the equilibrium of blood is affected by many factors, hematological tests are useful in the assessing the degree of diseases or disorders of the hematological or non-hematological origin. These the hematological of tests are help in diagnosis of nutritional, metabolic, hereditary, neoplastic, drug-induced, inflammatory or infectious disease state. The majority of cells suspended in plasma are erythrocyte, that is red blood cells. The leukocyte, that is white blood cells, are much in number than the erythrocytes, while the platelets, that is thrombocytes, are associated with blood coagulation mechanism. The RBCs contain high concentration of hemoglobin and red colored pigment which act as oxygen carrier. Leukocytes exist in different forms, each having a physiological function in the defense mechanism. The medical laboratory science practitioner of today must be theoretically sound and practically effective in his chosen disciplines. The tasks performed in the medical laboratory assist in the diagnosis and treatment of diseases. If not performed properly, they can adversely affect the health and well-being of the patient. It is therefore necessary that all medical laboratory scientists who work in the laboratory should have attained a minimum level of formal education in the field. The laboratory is run on scientific lines and has the minimum required infrastructure and equipment necessary for the discharge of its task. तो मैं आपको ये शॉर्ट में बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया है। तो हमने देखा कि मेन फंक्शन हीमेटोलॉजी में है, दैट इज़ डिटेक्ट ब्लड डिसऑर्डर and diagnose of this disorder so that appropriate treatment can progress of patient treatment. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब तरल पदार्थ है। हमारे बॉडी में दो तरह के फ्लूइड प्रेजेंट है, पहला है ब्लड, उसके बाद है लिम्फ। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को सर्कुलेट करता है द वैस्कुलर सिस्टम। शॉर्टली मैं बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन में हमें प्लाज्मा और ब्लड के बारे में बताया गया है। हीमेटोलॉजी में कॉमन टेस्ट होता है जो डॉक्टर फीवर आने के बाद रिफ़र करते हैं, दैट इज़ सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में हम देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंडाइसेस। इंडाइसेस मीन्स एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी।
और उसमें हम देखते हैं काउंट ऑफ प्लेटलेट, WBC एंड RBC। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, and platelets, that is thrombocyte, are associated with blood coagulation mechanism. RBC contains high concentration hemoglobin. RBC में हाई concentration hemoglobin रहता है एंड रेड कलर पिगमेंट रहता है जो कि एक्ट करता है ऑक्सीजन कैरियर। तो ये था इंट्रोडक्शन, आप भी इसे एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट इन हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी। हीमेटोलॉजी में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो हम देखेंगे। हीमोग्लोबिन मीटर, साहिलीज apparatus, इट कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन पिपेट, हीमोग्लोबिन ट्यूब, कंपैरेटर, उसका यूज़ होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए एक apparatus रहता है और उसके हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए हमें चाहिए हीमोग्लोबिन पिपेट, उसके बाद हीमोग्लोबिन का एक ट्यूब रहता है वो, और कंपैरेटर। हम देखेंगे हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका यूज़ है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, उसमें हम हीमोग्लोबिन देख सकते हैं इन पॉइंट्स में। तो सेकेंड है RBC पिपेट। RBC पिपेट भी हमें लगता है, तो देखते हैं। दिस पिपेट हैज़ अ लार्ज बल्ब विच कंटेन्स रेड ग्लॉस बीड. It has 3 marks 0.5, 1.0 and 101. Blood has drawn to mark 0.5 and diluting fluid is drawn up to mark 101. The dilution of blood is 1:200. RBC पिपेट में लार्ज बल्ब रहता है और उसमें रेड ग्लॉस बीड रहता है। पिपेट के ऊपर 3 मार्क्स रहते हैं 0.5, 1.0 एंड 101। हमें 0.5 तक ब्लड लेना रहता है और डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना रहता है 101 तक, और फिर उसका डाइल्यूशन हमें मिल जाएगा 1:200। उसके बाद देखेंगे हम WBC पिपेट। इट इज़ स्मॉलर देन रेड सेल पिपेट एंड इट्स बल्ब कंटेन वाइट बीड. इट हैज़ 3 marks 0.5, 1.0 and 11. Blood is drawn up to mark 0.5 and diluting fluid is drawn up to 11 mark. The dilution of blood is 1:20. WBC पिपेट रेड सेल पिपेट से छोटी रहती है और उसमें जैसे RBC के पिपेट में रेड कलर का बीड रहता था वैसे ही WBC के पिपेट में वाइट कलर का बीड रहता है, और इसमें 3 मार्क्स रहते हैं 0.5 से 0.5, 1.0 एंड 11। तो हम इसमें ब्लड लेंगे 0.5 तक एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे 11 मार्क तक, और इसका डाइल्यूशन हो जाएगा 1:20। देन फोर्थ है न्यूबर्स चेम्बर, दैट इज़ काउंटिंग चेम्बर। इसमें हम काउंट करेंगे। The chamber most commonly used is improved Newbar's chamber, which has area of 9 mm and depth of 0.1 mm. The two stages are separated by a gutter. The 9 square mm area of counting chamber is divided into 9 square. Each square is having area 1 square mm. The 4 cornered square measure 1 square mm and divided into 16 small square and are used for counting white cells. Central square is divided into 25 squares and each of these squares is divided into 16 small squares. Each square measures 1:400 square mm in area. 80 small squares are used in counting red cells and platelet. इसका यूजेस है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल RBC काउंट, टोटल प्लेटलेट काउंट, टोटल स्पर्म काउंट, टोटल सेल्स काउंट इन CSF, प्लूरल फ्लूइड, एसेटिक फ्लूइड एंड साइनोवाइल फ्लूइड। न्यूबर्स चेम्बर ये पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें स्क्वायर्स रहते हैं और जो स्क्वायर्स है उसमें हमें काउंटिंग करना पड़ता है सेल्स। तो इसके ये आपको डायग्राम के द्वारा पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे यूजेस। इसमें हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, RBC काउंट, प्लेटलेट, स्पर्म, टोटल सेल काउंट इन CSF, प्लूरल फ्लूइड सभी टाइप के हम इसमें काउंट कर सकते हैं।
फिफ्थ है वेस्टरग्रेन ट्यूब. It is 300 mm long tube. It is graduated from 0 to 200 mm. इसका यूज़ है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ESR. ESR के लिए वेस्टरग्रेन ट्यूब यूज़ करते हैं. और विंड्रॉप हेमाटोक्रेट ट्यूब ये भी ESR के लिए यूज़ करते हैं. तो हम देखेंगे. इट इज़ 110 mm लॉन्ग ट्यूब विथ 3 mm इंटरनल डायमीटर. इट इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 10 एंड 10 to 0. इसका यूज़ है द स्केल 0 to 10 यूज़ फॉर ESR, द स्केल 10 to 0 यूज़ फॉर PCV. ये हम विंड्रोप्स हेमाटोक्रेट ट्यूब PCV के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ESR के लिए भी यूज़ करते हैं. ESR मीन एस्टिमेशन सेडिमेंटेशन रेट. देन सेफ्टी इन द लैबोरेटरी. The practice of the medical laboratory science is associated with hazards and accidents. The laboratory worker is very much at risk of acquiring transmissible diseases through contact with patients or handling of clinical specimens. हमें लैब में सेफ्टी यूज़ करना है. ट्रांसमिसिबल पेशेंट्स के सैंपल्स हम हैंडल करते वक्त रिस्क होता है, इसलिए सेफ्टी इम्पोर्टेंट है. तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम देखते हैं. शुड वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथ्स दैट इज़ लैबोरेटरी कोट ओवर नॉर्मल क्लोथिंग. वियर क्लोथ शूज़ एंड डू नॉट वॉक बेयरफुट इन लैबोरेटरी. हमें लैब में सबसे पहले जाके लैबोरेटरी कोट वेयर करना है, देन शूज़. और हमें बिना चप्पल के लैब में घूमना नहीं है. ऑल स्पेसिमन एंड इन्फेक्टेड मटेरियल शुड बी हैंडल्ड विथ केयर. इन्फेक्टेड मटेरियल और सैम्पल्स हमें ध्यान देके हैंडल करने हैं. नथिंग शुड बी पिपेटेड विद द माउथ. पेन एंड पेंसिल्स शुड नॉट बी पुट इन द माउथ और स्टक इन द हेयर. हमें पिपेटिंग मुंह से नहीं करनी चाहिए. पेन और पेंसिल हमें मुंह में नहीं डालना है और हेयर में नहीं स्टक करना है. प्रोटेक्टिव ग्लोव्स और प्लास्टिक एप्रन शुड बी वॉर्न when collecting blood samples for hepatitis, AIDS और वायरल फीवर इन्वेस्टिगेशन. जब हम हेपेटाइटिस, एड्स और वायरल फीवर जैसे सैंपल्स कलेक्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर ग्लोव्स और प्लास्टिक एप्रन वेयर करना है. यूज नीडल शुड बी इंसर्टेड back into the guard immediately after use. Safe containers should be made available for immediate disposal of used needle. The container are finally incinerated. यूज़ की हुई नीडल हमें एक सेफ कंटेनर में डालनी है और इमीडिएट डिस्पोज करना है नीडल्स को. एनी कट्स, ओपन सोर और वाउंड शुड बी कवर्ड विथ वाटर प्रूफ एडहेसिव ड्रेसिंग. अगर हमें कोई कट्स लगा हो या फिर ओपन सोर्स रहेगा तो हमें उसे वाटरप्रूफ एडहेसिव से ड्रेसिंग करना है. फिंगर नेल्स शुड बी केप्ट शॉर्ट. हमें नाखून बढ़ाने नहीं चाहिए, उसे हमेशा शॉर्ट रखना है. ऑल इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड मटेरियल शुड बी डिसइंफेक्टेड बिफोर डिस्पोजेबल. ऑल इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड मटेरियल हमें डिसइंफेक्टेड करने हैं before disposal. At the end of the day, all the work benches should be cleaned with disinfectant. हमें काम होने के बाद बेंचेस को क्लीन करना है. Before leaving the laboratory for any length of time, hands should be washed with soap and water thoroughly. काम होने के बाद और लैब से निकलने से पहले हमें प्रॉपर सोप या फिर डेटॉल से हाथ अच्छे से धोने हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी. आप भी इसे पढ़ सकते हो और एज नोट्स आप इसे यूज़ कर सकते हो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए. थैंक यू.